your chapter Nationalism in Europe. It is going on. I have already completed. Introduction. Your introduction is completed, and I was continuing the first topic in my previous class. Your topic one is the French Revolution and the idea of nation. It is your first topic in my previous session or previous video or class. I was continuing the first topic, the French Revolution and the idea of nation, and I have already discussed that for the first time the idea of nation was clearly expressed during French Revolution. That means for the first time the idea of nation was clearly expressed during French Revolution. That means before 1789 the idea of nationalism was clearly not expressed. It was for the first time clearly expressed during French Revolution, and after that France became constitutional monarchy. The sovereignty was passed into the hands of in the hands of National Assembly. National Assembly. That means the sovereignty power, it was passed, or the power passed into the hands of National Assembly from Louis XVI, that is monarchy. The first expression of nationalism came with the French Revolution in 1789. France was a full-fledged territorial state in 1789 under the rule of an absolute monarchy. After French Revolution, the political and constitutional changes which came in the wake of French Revolution led to the transfer of sovereignty from monarchy to a body of French citizens. The revolution proclaimed that it was the people who would henceforth constitute the shape and destiny of France. For converting monarchical France into a nation state, several steps were taken by French revolutionaries to create it as a nation state. That means several steps were taken by French revolutionaries. Several steps were taken by French revolutionaries to create common identity among the French people. That means several steps were taken by French revolutionaries to create common identity among the French Revolution, or you can also tell that creating collective belongingness, bhaichara.
तो तरह तरह का स्टेप्स लिया गया फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज के द्वारा टू क्रिएट फ्रांस एज अ नेशन स्टेट और टू क्रिएट कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस अमॉन्ग द फ्रेंच पीपल और टू क्रिएट कॉमन आइडेंटिटी अमॉन्ग द, बिना कॉमन आइडेंटिटी, बिना एक पहचान के, बिना भाईचारा के फ्रांस को नेशन स्टेट के रूप में कन्वर्ट कर पाना संभव नहीं था। इसलिए सेवरल स्टेप्स वे टेकन बाय फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज टू क्रिएट कॉमन आइडेंटिटी अमॉन्ग द फ्रेंच पीपल और टू क्रिएट कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस अमॉन्ग द फ्रेंच। Then what were the steps taken by the French revolutionaries to establish France as a nation state? Steps taken by French revolutionaries. Steps taken by French revolutionaries to create France as a nation state or to create collective belongingness among the French people or to create collective identity or common identity among the French people. The first was the idea of la patrie. ला पैट्री दैट मीन्स द फादरलैंड, जैसे हम लोग का मदरलैंड होता है उसी तरह से तो फादरलैंड, द आइडिया ऑफ ला पैट्री और द फादरलैंड एंड ली सिटोएन। ली सिटोएन मतलब सिटीजन, नागरिक। फॉर द फर्स्ट टाइम the idea of la patrie or the fatherland and le citoyen, the citizen, came in France. The idea of la patrie or le citoyen was created among French people. हम लोग सभी एक ही पिता के संतान हैं या फिर हम लोग एक नागरिक हैं, सिटीजन। नागरिक का मतलब who enjoy different type of rights और state gives different types of rights to its citizens। नागरिक का मतलब ही है कि अधिकार प्राप्त, जिसको कि अधिकार मिला हुआ है, स्टेट्स के द्वारा कुछ उसको अधिकार दिया गया है, उसी को हम लोग नागरिक बोल सकते हैं। तो जो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आया, आइडिया आया वो ला पैट्री का या फिर ले सिटोएन का, ताकि इसी बहाने लोगों को एक साथ यूनाइट किया जाए। उसके अलावा the States General was changed to National Assembly। आप लोग जान रहे हैं अच्छी तरह से कि ड्यूरिंग मोनार्की और बिफोर 1789 और बिफोर फ्रेंच रिवोल्यूशन the body or the political body of French people was known as States General, and after French Revolution, in place of States General, National Assembly was created. So the States General was changed to National Assembly, or National Assembly was created in place of States General. Then a new tricolor was chosen in place of former रॉयल स्टैंडर्ड। जो रॉयल फ्लैग था उसके जगह पे दूसरा तिरंगा लाया गया। दैट मीन्स द फ्लैग वाज आल्सो चेंज्ड। और जो नेशनलिज्म इन इंडिया है उसमें हम लोग बता चुके हैं जो सिंबल्स है एंड आइकन्स, जो लास्ट वाला जो आपका टॉपिक है उसमें बता दिए थे कि सिंबल्स और आइकन्स का क्या इंपॉर्टेंस है। फ्लैग का
कितना इंपॉर्टेंस था लोगों को एक साथ जोड़ने के लिए। तो वही स्थिति यहाँ भी थी। वो जो राजा का फ्लैग था उसके जगह पे दूसरा जो एक ट्राई कलर को चुना गया, दूसरा जो तिरंगा है उसको लाया गया। उसके अलावा यूनिफॉर्मिटी इन लॉ, यूनिफॉर्मिटी इन लॉ, अलग अलग प्लेसेस में अलग अलग तरह का कानून था, उसको हटाया गया। उसके बदले में एक कानून लाया गया पूरे फ्रांस में नेशनल असेंबली के तहत में। उसके अलावा और इंटरनल कस्टम ड्यूटीज वेयर एबोलिस्ड। जो पहले से जो कस्टम ड्यूटीज लगा हुआ था उसको हटा दिया गया, मतलब अब किसी तरह का कोई भी ड्यूटी देने की कोई ज़रूरत नहीं, किसी तरह का कोई भी टैक्सेस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इजली बिना कोई टैक्स बिना कोई ड्यूटीज दिए हुए इजली आप ट्रेड कर सकते हैं। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज वेयर एबोलिस्ड। यूनिफॉर्म system of weights and measures were adopted. In different parts of France, different types of weights and measures were prevalent. That means the unit of weight and measure was not same in whole of France. So, in place of that, a uniform system of weights and measures were adopted in whole France. After that, several languages or vernacular or regional languages were there in France. So, regional dialects were discouraged and in place of that French became the common language. फ्रांस के अलग अलग रीजन्स में अलग अलग लैंग्वेजेस बोला जाता था। देयर वे सेवरल रीजनल डायलेक्ट्स और वर्नाकुलर लैंग्वेजेस वेयर प्रेजेंट इन फ्रांस। सो दोज रीजनल डायलेक्ट्स और वर्नाकुलर लैंग्वेजेस वेयर डिस्करेज्ड एंड इन प्लेस ऑफ दैट फ्रेंच बिकेम देयर कॉमन लैंग्वेज। सो दीज वेयर सम स्टेप्स which were taken by French revolutionaries to create a sense of collective belongingness or collective identity or to create nationalism among the French people. So ये सब जो steps था वो लिया गया फ्रांस में लोगों के बीच में कॉमन आइडेंटिटी लाने के लिए, या फिर कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस लाने के लिए, या फिर नेशनलिज्म को क्रिएट करने के लिए। एंड आफ्टर दैट फ्रांस वाज डिक्लेयर्ड एज अ नेशन स्टेट, एंड आफ्टर दैट इट बिकेम द डेस्टिनी ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज टू क्रिएट सेवरल नेशन स्टेट्स इन यूरोप। जैसे वो लोग अपना एक डेस्टिनी, अपना एक एम बना लिए कि जैसे फ्रांस को बना दिए नेशन स्टेट, उसी तरह से अलग अलग नेशन स्टेट्स हम लोग क्रिएट करेंगे पूरे यूरोप में। एंड फॉर दैट शेक जैकोबिन क्लब्स वेयर फॉर्म्ड इन different towns and cities of Europe.
जैकोबिन क्लब के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि इट वाज कंसीडर्ड एज अ रिवोल्यूशनरी क्लब. सो जैकोबिन क्लब्स वेयर एस्टेब्लिश्ड इन डिफरेंट टाउन्स एंड सिटीज ऑफ होल यूरोप. फ्रांस को तो अब नेशन स्टेट बना ही दिए. अब ये एम हो गया फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज का कि अब पूरे यूरोप में हम लोग अलग अलग नेशन स्टेट्स का फॉर्मेशन करने में वहाँ के नेशनलिस्ट का सहायता करेंगे. एंड फॉर दैट सेक जैकोबिन clubs were established or formed in whole of Europe. And after that, Napoleon also played an important role in spreading nationalism to different parts of Europe. Napoleon also played an important role. Napoleon and his soldiers. Napoleon and his army also played. इसको फिर से मिटा के लिखिए दिया जाए. पेन से तो लिखा हुआ है लेकिन मिटाया नहीं जा सकता है. जब चाहेंगे तब मिटा देंगे तुरंत इसको. क्या फालतू में. Napoleon and his army also played an important role in spreading the idea of nation in different parts of Europe. यूरोप के अलग अलग पार्ट्स में नेशनलिज्म और जो नेपोलियन था और जो उसकी आर्मी थी उसका भी एक बहुत बड़ा रोल था पूरे यूरोप में नेशनलिज्म को फैलाने में, या फिर जो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म था, आइडिया ऑफ नेशन था, उसको स्प्रेड करने में. और उसमें जो सबसे बड़ा हाथ था वो था नेपोलियनिक कोड. नेपोलियनिक कोड या फिर इसको द सिविल कोड ऑफ 1804 भी बोला जाता है. हम क्लास आप लोग को 9th में ही बताए थे कि नेपोलियन डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द एम्परर ऑफ फ्रांस इन 1804. 1804 में अपने आप को डिक्लेयर कर दिया था. जो नेपोलियन था वो एम्परर ऑफ फ्रांस, और वो डिक्लेयर करने के बाद एक अपना स्पेशल सिविल कोड लाया. मतलब जैसे हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन है तो आप लोग मान सकते हैं कि उसी तरह का एक कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया जिसको कि सिविल कोड ऑफ 1804 बोला जाता था. और एंड द एरियाज विच वे कॉन्कर्ड बाय नेपोलियन एंड हिज सोल्जर्स वेयर एडमिनिस्टर्ड अकॉर्डिंग टू सिविल कोड ऑफ 1804. जो भी नेपोलियनी कोड था, जो सिविल कोड ऑफ 1804 था, उसी के अनुसार यूरोप के जितने पार्ट्स थे जिसके ऊपर की कब्जा था नेपोलियन का, उसको सिविल कोड ऑफ 1804 या फिर उसको नेपोलियनिक कोड बोला जाता है, उसी के अनुसार कंट्रोल किया जाता था. द नेपोलियनिक कोड और द सिविल कोड ऑफ 1804 वाज टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्टरिंग द होल ऑफ यूरोप. जो पूरा यूरोप था, जिस यूरोप के मैक्सिमम पार्ट्स पे, द मैक्सिमम पार्ट्स ऑफ यूरोप वाज अंडर नेपोलियन, and he gave the civil code of 1804 or Napoleonic code, and the Europe was administered according to the civil code of 1804. civil code of जो 1804 था उसी के अनुसार जो यूरोप है, जो नेपोलियन का जो टेरिटरी था, उसको एडमिनिस्टर किया जाता था. तो इसी से आप समझ सकते हैं नेपोलियनिक कोड या सिविल कोड ऑफ 1804 का इंपॉर्टेंस. ये वही काम किया जो काम कॉन्स्टिट्यूशन किसी कंट्री में करता है. एक जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है
उसके अनुसार पूरे कंट्री को रूल किया जाता है। मतलब हम सब लोगों को लगता है कि हम लोग का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब हम लोग एक ही देश के वासी हैं। तो उसी अनुसार वही स्थिति सिविल कोड ऑफ 1800 जो 4 थी उसकी भी थी। इसी से इसका इंपॉर्टेंस आप लोग समझ सकते हैं। और जो थोड़ा सा पार्ट्स बचा हुआ है इसको अगले पार्ट में कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू।